पर चल जाओ है पढ़न दे जा। So yesterday we discussed about some of the displacement reactions, right? जिसमें हमने कॉपर सल्फेट की रिएक्शन की थी विद आयरन, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पर आपके पास फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर आया था, कॉपर का कौन सा कलर है, प्लस कॉपर के रेड डिपॉजिट्स हैं वो आपको आयरन पे दिख रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। So here I am having some of the chemicals with me. Let us check firstly their acidic and basic character and about the displacement reaction. सबसे पहले in this particular chemical you have to see whether this is acidic or basic in nature. ठीक है, हम पहले ये चेक करेंगे। अब मैंने आपको बताया हुआ था acidic and the basic character it can be checked with the help of litmus paper. So ये आपने मुझे बताना है whether this is acidic or basic in nature. ठीक है, ये जो मैंने होल्ड किया हुआ है टेस्ट ट्यूब में. So this is the litmus track. टेस्ट ट्यूब में केमिकल है एक. Okay, so this is blue litmus. I'm going to dip this blue litmus into it, and let's check whether this is showing any color change or not. Is there any color change? Yes. That means the pink, the red litmus it changes into blue, and when red litmus it changes into blue, that means the solution is basic in nature. Okay. Now this solution is actually the solution of calcium oxide. तो कैल्शियम ऑक्साइड है. कैल्शियम इज अ मेटल और मेटल के ऑक्साइड्स जनरली क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर. ओके, तो कैल्शियम की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी we will be getting calcium oxide. This is a metal, and reaction of metals with the oxides or oxygen it gives you metallic oxide or metal के oxide, and metal oxide they are generally okay. So this we have proved with the help of
हमने लिटमस का टेस्ट किया है इसके ऊपर। अब उसके बाद we will be doing a number of experiments और डिफरेंट जिसमें आपने मुझे बताना है कि कौन कौन सी रिएक्शंस इसमें से पॉसिबल हैं और कौन सी नहीं। So firstly, we will be doing the reaction of copper sulfate with zinc. Okay. Yes. Secondly, we will do the reaction of copper sulfate with iron. In the third, we will do the reaction of zinc sulfate with copper. Fourth reactions, we will be doing the reaction of iron sulfate with copper. And in the last reaction, we will do zinc sulfate with iron. According to the reactivity series, okay, so if we talk about copper and zinc, कौन ऊपर है? That means zinc is more reactive than copper. So this reaction is possible. Copper sulfate and iron. This reaction is possible. Zinc sulfate plus copper. कर लूंगी मैं, रहने दो। Zinc sulfate plus copper. कॉपर नीचे है, जिंक ऊपर है, यानी कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, so that is no reaction. आयरन सल्फेट, आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव. जिंक सल्फेट और आयरन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, अगेन नो रिएक्शन. Okay, so let's discuss some of the reactions. अरमान इधर आओ, इसमें से जिंक देखो, इसमें नहीं डब्बे में देखो, सल्फेट नहीं चाहिए, अकेला जिंक देखो. ये इसमें देखो जिंक है, देखिए बेटा, this is copper sulfate solution. We are going to do the reaction of copper sulfate with zinc. आपने देखा है कॉपर सल्फेट का कलर कैसा है? That is blue in color. And here I am having some of the zinc granules with me. तो ये ऐसे होते हैं थोड़े से. Okay, so I am going to add this. छोटे से छोटे फॉर्म में इसको ऐड करेंगे ताकि वो जल्दी में. हाँ जी. वो तो आयरन के केस में होगा ना. सी अब इसको थोड़ी देर और पड़े रहने दो, फिर चेंज ऑब्जर्व करते हैं. कलर जो है वो हल्का हल्का लाइट होना शुरू हो गया है आपका. और जिंक देखो, सी द कलर ऑफ जिंक. कैसे डाले थे हमने? इस सिल्वर कलर के डाले थे. नाउ दे आर ब्लैकिश इन कलर. ओके, सो जब ये पड़े रहेंगे देन यू विल सी द कलर इज गेटिंग मोर एंड मोर लाइटर. ठीक है, कम हो रहा है ना अब. तो दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज गोइंग ऑन. कॉपर सल्फेट और जिंक की रिएक्शन हो रही है. देखो ब्लैक होना शुरू हो गया कितना ज्यादा. स्लोली एंड स्लोली इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग इनटू पीसेस.
तीन मटेरियल्स के साथ ये रिएक्शन करेंगे तो मैम हो जाएगा वो। मैम अगर हम पोटेशियम लेते हैं और ये दोनों मटेरियल्स के अंदर डाल देते हैं तो मैम वो रिएक्शन होता है तो पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा। पोटेशियम के साथ किसकी रिएक्शन? मैम अगर हम किसी सॉल्यूशन में पोटेशियम डाल दें तो हमने दो मेटल्स की रिएक्टिविटी चेक करनी होती है एट सेम टाइम। सी ठीक है बेटा, तो आप देखोगे ये धीरे धीरे जो है वो पीसेस में ब्रेक हो रहा है। कैन यू सी दिस जिंक पार्टिकल्स, ब्लैक कलर के जिंक पार्टिकल्स, ठीक है। चलिए, सो वी हैव सीन दैट द फर्स्ट रिएक्शन अकर्ड, ओके। सेकंड के लिए अभी मेरे पास आयरन नहीं है तो मैं आपको कल दिखा दूंगी। और देखते हैं जिंक सल्फेट है, देखो उसमें जिंक सल्फेट है, आयरन या कॉपर है उसमें, देखो अकेला आयरन या अकेला कॉपर। है कुछ? चला जाओ वापस, दे दे सारे बॉक्सेस दो मुझे। कॉपर सल्फेट, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, चलो। Okay, so this is all about the first reaction. We have studied that whenever we add sodium and potassium to water, the reaction is highly exothermic in nature. ठीक है, ये मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, पैलेट्स हैं। मैं इसको ऐड करने लगी हूँ, वाटर में हम ऐड करेंगे एंड वी विल ऑब्जर्व वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। हीट निकल रही है नहीं निकल रही है, ओके। स्पैचुला दो। देखिए बेटा, ये होती है सोडियम पैलेट्स, ठीक है। इसको जब आप बहुत देर तक बाहर रखोगे तो ये मेल्ट होनी भी शुरू हो जाती है। हाथ नहीं लगाना है उसको। ओके, सो यू कैन सी आई एम हैविंग सोडियम इन इट, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये, ठीक है। इसमें जब मैं पानी डालूंगी so it will form a sodium hydroxide solution. So इसको थोड़ा सा डिसॉल्व करेंगे। So when it starts dissolving, you can feel the reaction. इसको हाथ लगाओ बेटा टेस्ट ट्यूब को। Is it hot? टेस्ट ट्यूब हॉट हो गई है, देखो। Is the test tube hot? Six. अभी मैंने इसमें थोड़ी सी पैलेट्स ऐड की हैं। A small amount of sodium hydroxide is added and you can feel टेस्ट ट्यूब कितनी ज्यादा गर्म हो चुकी है इस पॉइंट पर। अभी मैंने तभी थोड़ा सा अमाउंट लिया है और उस थोड़े से अमाउंट में ही आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा ये टेस्ट ट्यूब जो है वो वार्म हो गई है, गर्म हो गई है, ठीक है। अनबियरेबल टू टच हो गई है, करो हाथ। इट इज अनबियरेबल टू टच, यानी कि आप बहुत देर तक उसको ऐसे टच नहीं कर सकते, ठीक है। इट्स टू हॉट, okay, so that's why the reaction of sodium and potassium with water is very vigorous. अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, बहुत ज्यादा पानी डलेगा इसमें, तो रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाती है, ओके।
performing the reaction of magnesium ribbon with the oxygen, and then we will checking it whether the hydroxide produces basic or acidic. ठीक है, तो मैं वहां पर रिएक्शन करके आपको दिखाऊंगी. आप पीछे चले जाओ बेटा थोड़ी देर के लिए. So fans off on the lights and fan. So have you seen the reaction? Very white and bright dazzling flame. It is observed. So the magnesium ribbon it burns with the white powder. और आप देख सकते हो साइड पे व्हाइट कलर का सब्सटेंस दिख रहा है आपको. ठीक है, लेक्चर खत्म होने दो 1 मिनट बस. Now magnesium hydroxide is basic in nature, so it will convert. क्योंकि पानी बहुत ज्यादा था, मुझे पता नहीं है ये टेस्ट देगा कि नहीं. हो गया. हाँ जी, सी दिस रेड लिटमस इट हैज चेंज्ड इनटू ब्लू कलर. हो गया. जो साइड पे लगा है उसी के साथ ही रब करके देखते हैं ना. देखिए, इट हैज चेंज्ड इनटू ब्लू कलर. कैन यू सी? तो यानी कि ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है दिस इज आल्सो बेसिक इन नेचर. पानी में नहीं गया, वो साइड पे जो था उसी ने बचाया इसको. ठीक है, चलो. So this is all about your test. ये रिएक्शंस की बाकी जो है मैं आपको कल करवा दूंगी. अभी मेरे पास केमिकल्स नहीं है. चलिए, लेट्स प्रोसीड टू द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. यूजेस रह गए अभी. लेट्स प्रोसीड टू द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. If we talk about the various non-metals, कौन-कौन से non-metals हैं? Why you are saying sodium and potassium? ब्रोमीन. ठीक है, अब इसमें से जो मेन हमारे यूज होते हैं, आपको पता है कार्बन के ये दोनों फॉर्म्स है, डायमंड एंड ग्रेफाइट. डायमंड पता है आपको कहाँ पर यूज होता है? ज्वेलरीज में. ठीक है, ग्रेफाइट इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल लेड. ठीक है, एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग ऑफ रॉड्स, इमर्शन रॉड्स, जो आपकी बैटरीज में या कार ऑटोमोबाइल्स में यूज होती हैं. तो ग्रेफाइट की रॉड्स भी बनती हैं, RODS रॉड्स ग्रेफाइट की. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें. ग्रेफाइट के याद कर लेना. ठीक है, ये आपने इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं हम सेल्स के लिए. उसके बाद लेड पेंसिल्स में यूज करते हैं हम इसको. ओके,
देन आयोडीन, कौन सा सॉल्ट? आयोडाइज्ड सॉल्ट, ठीक है, द आयोडाइज्ड सॉल्ट दैट वी यूज। और कहाँ पर यूज होता है? आयोडीन की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। जब आपके वाउंड्स होते हैं उन पे आयोडीन के ही सॉल्यूशंस लगते हैं, ओके, ऑन योर वाउंड्स हम आयोडीन सॉल्यूशन दे आर एक्चुअली अप्लाइड। तो इसका मेडिसिनल यूज है आयोडीन का, ओके। आयोडीन इज हैविंग व्हिच यूज? मेडिसिनल यूज। फॉस्फोरस, दैट इज मेनली यूज्ड इन क्रैकर्स, पढ़ा ना आपने व्हाइट फॉस्फोरस गन पाउडर्स बनाने में। तो ऐसी जो एक्सप्लोसिव चीजें हैं उनमें क्या यूज होता है? फॉस्फोरस। आयोडीन, इट इज यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक, मेडिसिनल यूज है। जो आपके वाउंड्स होते हैं, जो आपके वाउंड्स हैं उनके ऊपर क्या लगता है? आयोडीन लगता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इट इज यूज्ड इन दी ब्रीदिंग पर्पसेस के लिए, ओके। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किसमें यूज होता है? नाइट्रोजन बताइए किसमें यूज होता है? और जो आपके प्रोसेस्ड या सॉरी जो लेज वगैरह आते हैं, ठीक है, जो आपके फूड्स होते हैं जिसमें एयर होती है, तो वो एयर नाइट्रोजन गैस उन्होंने फिल की होती है उसमें, ओके। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की तरह में यूज होते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन एज अ गैस, ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो एज अ गैस, एज अ फ्यूल आप यूज कर सकते हो। क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन का क्या यूज है? डिसइंफेक्शन, ठीक है, डिसइंफेक्शन इन द सल्फर के क्या यूज है? सल्फर भी आपके ऑइंटमेंट्स बनाने में, स्प्रेज, पेस्ट जो है उनको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, या केमिकल्स बनाने में, सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करना है आपके, ठीक है, तो उन सब में ये यूज होते हैं। लेड पेंसिल्स बनती हैं, ग्रेफाइट रॉड्स बनती हैं। कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट में कार्बन ही है बेटा, वही फॉर्म्ड है, ठीक है जी। इज इट क्लियर? ओके, उसके बाद बताइए यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स में सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट आयरन, आयरन की ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आयरन कहाँ कहाँ यूज होता है? इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इन मेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है, ओके। रेल ट्रैक्स हैं, स्टोरेज टैंक्स हैं, तो आयरन जो है वो हर जगह मोस्ट कॉमनली यूज होता ही है आपका, ओके। नेक्स्ट इज कॉपर, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में यूज होता है। और एलॉयज, कॉपर के भी एलॉयज होते हैं ना, दैट इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग दी एलॉयज, वो आयरन यूज होता है। एल्यूमिनियम फॉइल्स बनाने में यूज होता है, एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स। गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरीज में यूज होते हैं।